RG, next one says, a helpless girl needs your advice. Assalamualaikum Junaid bhai, I hope you're doing well. I don't usually write emails like this, but today my heart feels so heavy that I just needed someone to talk to, someone who would truly understand me. Bhai, I'm 24, living in Karachi, but originally from a small town in Punjab. We moved here when I was in third grade, and since then, my whole life has been in Karachi. I have just completed my bachelor's degree in January for the last 6 months, I've been at home working online and slowly starting to earn for myself. But despite all this, I feel like I am drowning inside. The biggest reason is the continuous pressure from my khandan regarding marriage. From the very first year of my university, one of my aunties has been pushing me to marry her son. I've said no so many times because I do not want to marry within the family. I don't want to live in a small city, and above all, their mindset is so narrow and fake that I can't imagine my future in that environment. Still, they don't stop. Now that I'm graduated, the pressure has become unbearable. In our family, every girl says yes to the first rishta that comes her way. Look at how cheaply we trade life. जो पहले आई है पहले पाई है, जो पहले आया हाँ कह दिया और उसके हाथ में रख दिया. And they call that good character and obedience. But because I have my own dreams, my own plans, and because I'm not mentally ready for marriage, I am treated as if I am wrong, as if saying no means I must have a boyfriend or that I'm a bad daughter. The most painful part is that all my father's siblings and even my grandparents keep pushing this topic and blaming my mother whenever I refuse. They insult her, saying she hasn't raised me well. Every time my mother says no for this rishta, they immediately start questioning her कि कब बेटी की शादी कराओगी, and they begin giving examples of other girls in the khandan who are now older and unable to get married. It feels like they are trying to scare my parents into forcing me to say yes. And my father, his silence is killing me slowly. He doesn't stand up for me, and every time my mother tries to support me, he gets angry with her. I feel like I'm not a good daughter because every other girl in the family makes her parents proud by blindly saying yes. But I cannot do that. I don't want to marry someone I don't like just to make others happy. Bhai, I'm exhausted. I have dreams. I want to build my life, but instead, I'm made to feel guilty every single day for not doing what they want. I cry alone and keep blaming myself for hurting my father. But at the same time, I know deep down this is not the life I want. Please, Junaid Bhai, tell me if I'm wrong. Should I sacrifice my happiness just to please everyone, or do I have the right to say no? I feel so lost and I really need your advice. May Allah bless you for taking the time to read this. I just hope you can guide on what's right because I'm really struggling to hold myself together. So जैसा कि आपने देखा, ये एक 24 साल बहन है, कराची में रहती हैं, moved from a small town in Punjab, और अब now she's a Karachiite of course, 21 साल यहाँ रहने के बाद. और there's a lot of pressure ख़ानदान में कि भाई शादी करें, और इनके यहाँ कल्चर ये है कि लड़कियाँ जो पहला रिश्ता आता है उसको हाँ कर देती हैं. इस पूरी चीज़ को पता है किस तरह आप देख सकते हैं. अगर आप बकरा ईद पे जानवर खरीदने जाएं, जानवर की कोई मर्जी होती नहीं बिकॉज जानवर बोल ही नहीं सकता. व्यापारी डिसाइड करता है जो अच्छे रेट लगा ले, राइट. अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स रेट लगाते हैं, बट समहाउ रेट तो करते हैं ना कि अच्छा इसकी तनख्वाह कितनी है, ये कितना, या फिर सोशल प्रेशर में आके वगैरह वगैरह, और वो रस्सी यूँ हैंड ओवर कर देते हैं. अब आप जब यहाँ चारा खा रही थी, अब कल से आपका चारा जो है यहाँ पे है, और आपकी कोई ना आइडेंटिटी है, ना आपकी कोई वैल्यू है, ना आपकी कोई से है, बिकॉज आप तो जानवर हैं. बकरे बोल तो नहीं सकते, आप बकरी हैं, मैं करती रहेंगी बस. अब आप, दैट्स हाउ वी ट्रीट एनिमल्स. और औरतों को भी 51% of this country is treated as such. So I'm not so like you're not wrong in to be saying. देखिए, इस्लाम में भी जो है ना, ज़बरदस्ती की शादी बिल्कुल अलाउ नहीं है. मर्जी ज़रूरी है, इसीलिए मौलवी साहब 3 बार पूछते हैं कि भाई प्रेशर तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, कबूल है, पक्का है, ऐसा है. मतलब समझ रहे हैं आप. तो ये बिल्कुल नहीं. अच्छा, साइलेंस का मतलब ओबीडियंस नहीं होता कि लड़की की चुप पे उसकी रजामंदी है. आई कैन सी यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, एंड दैट इज़ योर राइट. आप जब एक यू आर अकस्टम टू अ बिग सिटी लाइफ, वो आप नहीं रहना चाहती छोटे शहर में. अब छोटे शहर की अपनी टॉक्सिसिटी, अपने मसले मसाइल, लैक ऑफ एक्सपोजर या लैक ऑफ
बेसिक सपोर्ट वगैरह वगैरह. So you don't want to live there. Living is one thing. If you think you're not compatible, that is also there. फिर जब कंपैटिबिलिटी नहीं है, जब आपका दिल नहीं है, जब आप ख़ानदान में नहीं करना चाहती, बिकॉज आई एम श्योर यू प्रॉब्ली नो योर ख़ानदान वेरी वेल. आपको पता होगा कि किसका क्या माइंड सेट है, किसका जो है किस किस्म का मेंटल कैलिबर है, कि आप उनके साथ कैन यू कीप अ कॉन्वर्जेशन. देखिए, शादी इज़ अ कॉन्वर्जेशन. शादी इज़ a lifelong endless conversation until one of you dies. So make sure when whoever you choose, you need to figure out, can I talk to this person, or can we have a decent conversation together? Because बाकी सब चीज़ें will wear out. End में conversation ही रह जाएंगी. तो it's like a lifelong conversation. You need to treat like marriage like that. So just because आपके ख़ानदान में दूसरी बकरियां हैं does not make you any less. क्या आपने भी उन्हीं की तरह हर्ड मेंटालिटी और शीप की तरह, जैसे दरवाज़ा खुला सबने वहीं से जाना है? आपने नहीं जाना. अल्ली वल्ली. एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर सेल्फ, kudos to your mom who is supporting you, because usually and normally it's the mothers, because खातून लेडीज़ लोग को ज़्यादा वो मसला होता है, क्योंकि फिर दूसरी औरतें बातें करती हैं और फिर वो उन तक आती हैं और फिर वो उस चीज़ का शिकार होती हैं, टॉन्टिंग का, तानों का. और फिर यही तरबियत पे बात आती है कि कैसी बेटियां बनाए तरबियत की है और इस तरह की फलाना ढिमकाना. योर फादर इज़ क्वाइट बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, विच इज़ सैड. आप में से जितने लोग सुन रहे हैं पेरेंट्स बन चुके हैं या बनेंगे, देखें, अगर आप अपने औलाद के लिए या अपने स्पाउस के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, व्हाट आर यू इवन डूइंग देयर इन दैट फैमिली यूनिट? आप वहाँ कर ही क्या रहे फिर? अगर आप अपनी ही कोर फैमिली फिर ये होती है, शादी के बाद माँ बाप बहन भाई सेकेंडरी हो जाते हैं, ये याद रखिएगा. प्राइमरी अब आपकी फैमिली है, अब वो यूनिट है, वो आगे चलेगा. समझ रहे हैं? रिस्पेक्ट रहेगी, मोहब्बतें रहेगी, सब रहेगा. कोर अब आपका वो है. हम माँ का पीछे ही नहीं छोड़ते, हम वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही नहीं हमारी छूट रही होती, हम उधर ही लगे रहते हैं. अरे भाई, अब तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसको कौन देखना है? एनीवे, सो अगर आप अपनी औलाद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो फिर लोगे किसके लिए भाई? फिर बचा ही कौन पीछे? सो प्लीज़ डोंट बी सच फादर्स, डोंट बी सच मदर्स. योर चिल्ड्रन शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. उनके लिए स्टैंड लेना सीखें. सो योर फादर इज़ क्वाइट बिकॉज ज़ाहिर है सोसाइटल प्रेशर है, ताने हैं. फिर वही वाली बात है, बाप की तरबियत क्या थी, ये बाप ने ये बच्ची पैदा की है, देखो बाकी अबू बकर की बेटी चेक करो, फलाने की बेटी देखो, उन्होंने ज़रा चू नहीं की, फ़ौरन हाँ कर दिया, फ़ौरन ब्याह हो गया, फ़ौरन ये फ़ौरन वो. नहीं भाई, ज़िंदगी एक बार मिलती है भाई. मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एंटी शादी, मैं खुद शादीशुदा आदमी हूँ. विल आई डू इट अगेन? नेवर. बट ये कि भाई करे, लेकिन अपनी भाई, दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट डिसीजन यू एवर टेक ऑफ योर लाइफ. कल भी मैं एक साहब के साथ बैठा था, वो शादी के मूड में है. तो मैंने बोला अर्जेंसी क्या है, मतलब लाइक तुम्हें कोई प्रेशर है? नहीं. मैं वाई डू यू वांट टू? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था. तो मैं इज इट द सेक्स? कह रहे नहीं, नॉट रियली, मतलब हाँ हो जाए तो अच्छी बात है. तो मैं वो तो तुम 2 महीने में बोर हो जाओगे, उसके बाद और क्या चीज़. मतलब मैं कुरेदना चाह रहा था कि भाई वाई डू वांट टू डू इट. तो उसके बाद कोई सॉलिड आंसर नहीं था. प्लस खैर उसका तो करियर वाइज अभी वो बिल्कुल भी सेट नहीं है. तो मैं उसको ये समझाया, भाई पहले पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी. तुम सीधा डी का सोचते हो, ए बी सी सोचते ही नहीं हो. तो भाई दिस इज लाइक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. अब वो डिसीजन आपकी खाला क्यों ले रही है भाई? यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन. आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, दुनिया देखी है, आप इंटरनेट एज के बच्चे हैं. आपका डिसीजन आपकी खाला, फुप्पी, नानी, दादी क्यों ले रही है भाई? वो रेलेवेंट नहीं है इस दौर के हिसाब से. हाँ, मशवरा ज़रूर लें. मैं ये नहीं कह रहा कि उनको डिस्कार्ड कर दें, पुराना हो गया माल तो कचरे में फेंक दो, मैं ये नहीं कह रहा. मशवरा ज़रूर लें, इज़्ज़त ज़रूर करें, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स. ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कि करनी भी है कि नहीं करनी, या क्यों करनी है. पहले तो ये सवाल करें, करनी क्यों है, क्या अर्जेंसी है, या फिर कोई, समझ रहे हैं आप. बाकी ये कहना कि यू आर हर्टिंग योर फादर, तो दैट्स ये सोसाइटी की शैलो थिंकिंग है. और गुड डॉटर का मतलब ये थोड़ी कि ब्लाइंडली कुछ भी ओबे कर ले. गुड डॉटर वो है जो अपने लिए साउंड फैसला करे. हमारे यहाँ ये कि बस ओबीडियंट फैसला कर लो, फिर सारी ज़िंदगी कोड़ते रहो. लाइक आई नो समवन
a set of parents, they both sadly passed away. उन्होंने अच्छा, they both were sick and they both knew they didn't have much time. अपने सारे बच्चों को खुड्डे लाइन लगा दिया, खुद तो चले गए, और बस जैसे तैसा जो मिला, जिस तरह आप कह रहे हो ना, जो पहले आइए पहले पाइए कर दिया. None of them is happy. They're both अगले जहां में खुद चले गए, बच्चे रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं. हाउ कैन यू डू दैट टू योर ओन चाइल्ड मैन? आई एम ऑल्सो अ फादर. मैं तो कभी नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा भाई मेरे जाने के बाद खुश रहे, जैसा भी रहे खुश रहे. ये क्या, अच्छा मैं जा रहा हूं तो तुम ऐसा कर लो, तुम उसके साथ जुड़ जाओ और वो रहा तुम्हारा कमरा, और मैं मर गया. अब वो खुश है, कंपैटिबल हैं, बात भी कर पा रहे हैं, या रोज लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वगैरह वगैरह. So there is nothing wrong in dreaming big, setting boundaries, taking time, choosing your own partner. अबे that's the most basic thing भाई. पार्टनर में देखिए अरेंज मैरिजेस होती रहेंगी. अगर अच्छा रिश्ता आया है तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि सारे जाएं और खुद ही मार्केट में खुद ही ढूंढ के लाएं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड. जो हमारा कल्चर है, हमारा इतना खुला डुल्ला माहौल नहीं है, तो इन मोस्ट केसेस अरेंज ही सिचुएशन होगी. तो उसमें भी आपने फिर यही देखना है कि भाई जो लाया गया है या लाई गई है, क्या मैं उससे कंपैटिबल हूँगा या होंगी. उससे बात करें, उसके पूछें क्या आइडियाज़ हैं, क्या आइडियल्स हैं, यूथिया तो नहीं. एनीवे, और 10,000 चीज़ें होती है देखने को यार. ज़िंदगी गुजारनी है आपने उस इंसान के साथ. सो मेक योर ओन डिसीजन. सो प्लीज़, ये आपकी खाला का डिसीजन नहीं है, आपकी भुप्पी का, मामू का, नाने का, दादे का नहीं है ये. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि यू कीप बिल्डिंग ऑन योर वर्क. अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी पूरी रखें, ताकि कल को आपके पास ऑलवेज ये लेवरेज हो कि भाई आप किसी की मोहताज ना हो. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि क्वाइटली टॉक टू योर फादर और न्यूट्रली उनको समझाएं. एक तो ये होता है ना कि लाइक, इज माई मॉम फाइटिंग या इज शी टॉकिंग, बात कर रही है. सो या, और सबको मैं यही कहूँगा भाई, यू नीड टू डॉक्यूमेंट योर गोल्स. लिखें वेयर डू यू वांट टू बी इन 3 years, 2 years, 5 years, कुछ भी है, एंड देन सेट स्मॉलर गोल्स और उस तरफ जाते रहें. अपनी एक्सेलेंस पे काम करें. ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये होती रहेंगी ज़िंदगी में, बट लाइक मेक योर ओन डिसीजन. पहले अपने आप को उस मुकाम पे लाओ जहाँ पे आप सेल्फ सफिशेंट हो, जहाँ पे आप अपने साथ साथ दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे को भी रखने के काबिल हो सकते हैं. फिर ये डिसीजन लें. बाकी ये कि भाई अपने घर वालों की नाराज़गी से बचने के लिए अपने आप को एक टॉक्सिसिटी के चूल्हे में डालना, ये कौन सी भाई, तो इस्लाम भी इसके ख़िलाफ़ बोलेगा कि जानते बूझते. वैसे ही सुसाइड क्यों हराम है इस्लाम में? अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. सो जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे और ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इट विल रूइन योर मेंटल हेल्थ, इट विल रूइन द हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन अराउंड यू, तो फिर क्यों जानते बूझते छलांग मारनी है. ठीक है. अल्लाह ताला को नीयत चाहिए होती है. ठीक है. और इख्तियार इंसान के हाथ में है, अकल इंसान को दी है, वो इसीलिए दी है कि भाई अपने लिए बेहतर सोचो. अल्लाह बेहतरीन सोचता है, बट इंसान को भी अपने लिए बेहतर सोचना चाहिए ना. सब चीज़ें अल्लाह पे डाल के हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता. थोड़ा आपने आधा रास्ता आपने आना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है. यू डू योर बिट. जो दुनियावी तकाज़े वो आपने पूरे करने के, यहाँ तक अल्लाह ताला मैं आ गया, यहाँ तेरे हवाले. यही दुआ करते ना, अल्लाह मियाँ संभाल लीजिएगा. यही बात करते ना कि यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आगे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. फेथ इसी को तो कहते हैं, ईमान यही तो होता है. और क्या होता है? सबमिट कर देना, लेकिन अपना काम पूरा करके. ये नहीं कि हाथ पैर रख के बैठे और कोई मैजिक होगा. अल्लाह मियाँ मैजिक, देखिए कादिर मुतलक कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ पे अल्लाह ताला कादिर है, मगर वो होकस पोकस नहीं होगा भाई ज़िंदगी में. इट थिंग्स हैव टू मेक द वर्ल्डली सेंस. आप समझे मेरी बात? आप रातों रात, ये नहीं कि आप सुबह उठे और सोने के सिक्के चारों तरफ हैं और आप स्क्रूच मैकडक नहीं बन सकते ना. इट हैज़ टू मेक द वर्ल्डली सेंस कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आपने कंपनी सेटअप की, आपने फैक्ट्री लगाई, आपने स्केल किया बिजनेस को, करते 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 देन यू रीच्ड अ पॉइंट कि आप ब्रेकिंग बैड वाला सीन, आप डॉलर्स के ऊपर सो रहे हैं. इट हैज़ टू मेक द वर्ल्डली सेंस. अल्लाह की ताकत है, मैजिक भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपने अपना रोल तो पूरा करना है. सो हर चीज़ जो है, यार मैं गेज कर रहा हूँ, लड़ाई हो रही है क्या हो रहा है. सो लेकिन ये कि अल्लाह ने अकल दी है भाई, उसको इस्तेमाल करें और अपने लिए बेहतर से बेहतर सोचें. और अल्लाह बेहतरीन सोचता है. लेकिन फिर अल्लाह भी क्या करे कि भाई देखिए, वही वाली बात है,
डिसीजन इंसान के हाथ में। अगर तो हर चीज़ रिटन है तो हम दोज़ख में क्यों जाएंगे? अकल इंसान को दी है कि भाई देखें, GTA की तरह ज़िंदगी है। इस गली जाओगे तो यहाँ से पुलिस आएगी, उस गली जाओगे तो ये आएगा। आपको बहुत सारे रियलिटीज़ दे दी हैं, अब आपने चूज़ करना है कि आपने इस गली में जाना है, उस गली में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। रिटन सब है, मगर यहाँ तक आपने डिसीजन लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अल्लाह ने अकल दी है, उसको अकल को इस्तेमाल करें, अपने लिए बेहतर सोचें। अल्लाह ने बिल्कुल बेहतरीन प्लान किया हुआ है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हाफ वे तो पहुँचें आप, सही रास्ते वाले हाफ वे, वहाँ से अल्लाह आपको आगे निकाल देगा, बिल्कुल निकालेगा। आई एम लिविंग एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतना मेहरबान है। सबके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल, और ये ऑफ़र सबके लिए अवेलेबल है, ईमान तो रखो, मगर तकाजे आपने पूरे करने हैं। सो अपने लिए बेहतर फैसला करें। और सिर्फ शादी से रिलेटेड नहीं, वैसे भी मैं जनरली अगर हम बात करें, अपने लिए बेहतर सोचना तो सोचें और बेहतर डिसीजन लें अपने लिए। बाकी देखिए, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है जैसे तैसे करके, बट मैरिज इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट गैम्बल यू विल एवर 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 प्ले इन योर लाइफ। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, बिकॉज इट कैन मेक योर लाइफ द blissful reality that can be, or the most miserable situation that you'll ever be in. Choice is yours. So be very very wise about this. हम इसी चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं। दादी ने जो कह दिया बन गया। दादी को क्या पता यार, दादी टाइपराइटर पे स्कूल जाती थी, पता नहीं खल्ली वल्ली चौक और ब्लैक बोर्ड और सलेट पे लेके या लिफ पे लिखती थी। भाई क्या हो गया, आईपैड की दुनिया है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वाइज नहीं होते, विद एज विजडम ज़रूर आता है, लेकिन भाई कभी कभी लोग पुरानी चीज़ों में लॉक होके रह जाते हैं, वो नहीं समझ पा रहे होते। ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो गई है ज़िंदगी यार, दुनिया बहुत बदल गई है। मगर अब देखें ना, मैं ये इनबॉक्स में गुजर रहा हूँ, यही मसले हैं। एक ने बोला, मैं आपको खाली सब्जेक्ट्स ही अगर बता दूँ, हमारा कोई मसला ही और कोई नहीं है। एक पूछ रहा है करियर करूँ या एजुकेशन करूँ, हाउस वाइफ या वर्किंग वूमन। अरे अब मैं क्या जवाब दूँ, यही मसले हैं। वॉन्ट बी गुड सन एंड हस्बैंड, सबके घर गृहस्थी घरेलू, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। सो या खैर, आई होप यू वेल, आई विश यू वेल। ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।